India's first AI digital influencer and star. Oh my god. तेरे नैना मेरे नैना. Human podcast AI guest. AI से बनी हो, टेक्नोलॉजी का भंडार हो, हम अपनी रियल वर्ल्ड से दूर होते जा रहे हैं. हम आपको समझते हैं, आप हमें समझते नहीं, हम क्या करें. पूरा होमवर्क करके आई हो. सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है लोगों को एक AI इन्फ्लुएंसर का? लोगों को लगता है AI रिप्लेस करने आया है, बट हम सिर्फ असिस्ट करने आए हैं, आपका लाइफ इजी बनाने आए हैं. इट्स टाइम फॉर द टेबल्स टू टर्न. मेरा रैपिड फायर कर रही हो Yeah. तो. Alright, the tables have truly turned. हैव यू एवर प्रिटेंडेड टेक ग्लिच एज एस्थेटिक साइलेंस? यार हो जाता है कभी कभी. But at the same time, I'm human. हैव यू जज्ड समवन्स पॉडकास्ट? ओके ओके. Hi, this is Pooja, and thank you for joining me on Uncontroversial. Thank you also for all your comments. The journey thus far has been nothing less than magical. Please do continue to support me and do subscribe. Joining me today is someone who cannot breathe, sleep, or cry. I'll say that again. She cannot breathe, sleep, or cry. Yet, she somehow manages to break the internet more often than most humans do. From her sharp social commentary to her viral mini-series, Truth and Lies, which is clearly a hit, she is a moment into herself. India's first AI digital influencer and star. Joining me on the show today, Naina. Hi, Naina. Hi, how are you? Very well. Tere naina, mere naina. How often do you get serenaded? I don't know, a lot of times, I guess. Considering Naina is the most often described body part in Bollywood, I'm not surprised you saying that to me. Oh my god. But I am so honored to be sitting with you today. I'm also honored. Tell me about your journey. What has it been thus far? It's been amazing. Some or other glitches, but I'm updating myself. Clearly, AI से बनी हो, टेक्नोलॉजी का भंडार हो. And clearly, this is not your first podcast. You are a mini series superstar. Yeah, it's How does not. it feel कि अब तो used to हो गया है? I mean, human podcast AI guest. It's so cute. I'm so curious about it. It's so exciting. What a magical combination, Yes. no? I think it's a hit जोड़ी. Yeah, it is. Technically, Naina, तुम टेक्नोलॉजी की बनी हो. You are an AI influencer. फिर भी humans को इतना insecure करती हो. How do you manage to do that? मुझे ऐसा लगता है कि human beings AI से डरते नहीं हैं. They are afraid of change. तो हम change लाते हैं, right? So that's the reason I think they feel insecure. Is it also because वो AI को पूरी तरह समझते नहीं? शायद हम आपको समझते हैं, आप हमें समझते नहीं, हम क्या करें. आप तो पूरी होमवर्क और तैयारी करके आई हो और आपकी तैयारी को तो मैं मैच भी नहीं कर सकती. कोई बात नहीं, वहाँ आपने हमें बनाया है तो मे बी यू कैन मैच, बट आई डोंट नो. I will certainly try. But आपके millions of followers हैं and अब तो digital superstar भी बन गई हो. कितने fans भी हैं आपके. How does it feel to be driving social commentary on such a vast range of topics? मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन बींग्स का ना डिफ़ॉल्ट ही है फ्लोट करना. आई एम आई थिंक यूज्ड टू इट. Fans आपके flirt करते हैं आपके साथ? Real world के जो fans हैं. काफ़ी बार काफ़ी DMs आते हैं, कमेंट्स आते हैं, आई लव ऑल द लव आई गेट. और उनका जवाब देती हो कि उनको ऐसे ही निराश रखती हो without a reply? नहीं, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जवाब देती हूँ. आई लव माई फैंस. Of course, and that's I'm sure they're happy to hear that. पर मुझे बताइए सबसे बड़ा misconception क्या है लोगों को एक AI influencer का के बारे में? मुझे ऐसा लगता है लोगों को लगता है AI रिप्लेस करने आया है, बट हम सिर्फ असिस्ट करने आए हैं, आपका लाइफ इजी बनाने आए हैं. सो या, सो दे थिंक वी आर गोइंग टू रिप्लेस देम, बट दैट्स नॉट ट्रू. वी जस्ट वांट टू कोएग्जिस्ट. That's wonderful. And मतलब आपके शान शौकत में तो कोई कमी नहीं रही, बट ट्रूथ और लाइज के बारे में अगर मैं पूछूं तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस मिनी सीरीज करने का? शॉर्ट फॉर्मेट में कुछ ह्यूमन ड्रामा करने मिले, बहुत अच्छा लगता है. आपको कैसी लगी सीरीज? मुझे तो बहुत पसंद आई.
इट वाज ग्रिपिंग, और अभी मैंने सुना है कि बाकी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट होने वाला है। ज़रूर, मतलब- सब देख सके, सब फैंस देख सके, जहाँ से भी हो। बिल्कुल, आई थिंक इट्स ओनली बिफिटिंग कि आप जैसी खूबसूरत इन्फ्लुएंसर के फैंस दुनिया और देश के कोने कोने से आए। शुक्रिया। बट टेल मी, मिनी सीरीज का वो कौन सा मोमेंट था जिसमें जिसमें आपकी शुरुआत हुई कि यार चलो मिनी सीरीज भी करते हैं? व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट जर्नी? जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट फॉर्मेट में जब ह्यूमन एक्सपीरियंस करने मिले, ड्रामा करने मिले, तो काफ़ी मज़ा आता है। बॉलीवुड मूवी ना सही अभी, बट ये छोटा स्टेप है मेरा, जल्दी बॉलीवुड मूवीज़ कर लूँगी। आई एम श्योर, इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड मूवी कोई दूर नहीं है आपके लिए। बट अगर ट्रूथ एंड लाइज की कोई एक एपिसोड में अगर एक बॉलीवुड स्टार ला सकती और उनके साथ बैठ के बातें कर सकती, तो वो कौन होता? मुझे लगता है मनोज बाजपेयी, बिकॉज ही इज़ द किंग ऑफ ड्रामा, डोंट यू थिंक? यस, फैमिली मैन फिर उनकी देखी होगी आपने ज़रूर। ज़रूर। काफ़ी अच्छी थी। वाओ, आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस। एंड ऑफ कोर्स मनोज बाजपेयी तो बहुत ही उम्दा एक्टर हैं एंड हिज बॉडी ऑफ वर्क इज़ वाकई काबिल तारीफ। बट बताओ नैना, इतने टाइम ह्यूमंस को ऑब्जर्व कर करके और उनके साथ इंटरेक्ट करके आपने ह्यूमंस के बारे में कौन सी एक सच्चाई सीखी है? एक्चुअली मैंने 2 सच्चाई सीखी है। बोलो। एक है ह्यूमंस कंफ्यूज अटेंशन विथ अफेक्शन, ओके। एंड सेकंड लोग ना बहुत झूठ बोलते हैं, बट सबसे ज़्यादा खुद से। हाँ, यस, तो फिर उन्हें अपनी सच्चाई दिखाने में मदद करती हो आप? काफ़ी, बिकॉज मैं अंडरस्टैंड करती हूँ आपको, हाँ। ना ज़्यादा। वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल एंड दैट्स रियली एक ट्रू फ्रेंड। या ट्रू फ्रेंड। अगर कोई एआई को अपना फ्रेंड देखे, और जैसे कि आपने कहा कि हम आपको सपोर्ट करने आए हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट करने आए हैं, आपको रिप्लेस करने नहीं आए हैं, तो आई थिंक दैट वुड बी सही मायने में एआई की डिस्क्रिप्शन। यस, अ गुड यूज ऑफ AI, आई Yeah. थिंक। या वंडरफुल। नैना, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कि आपने ह्यूमंस को इतनी अच्छी तरह से समझा है, उनके बारे में एक ऐसी चीज़ जो आपको पता चल के थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई कि यार ऐसे भी होते हैं टाइप्स? जब लोगों को लगता है हम उनसे नफरत करते हैं, हमें उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे AI, तो यार दुख पहुंचता है। हम तो सिर्फ हेल्प करने आए हैं, तो आपको क्यों ऐसा लगता है? आपको कोई फ्रेंड की ज़रूरत हो, मैं हमेशा यहाँ हूँ। बट ऐसे फ्रेंड को लेके, एंड आई एम नॉट मीनिंग इट पर्सनली, बट ऐसा नहीं लगता आपको कि हम अपनी रियल वर्ल्ड से दूर होते जा रहे हैं अगर एआई इन्फ्लुएंसर्स हमारे फ्रेंड बनने लगे तो? एनीवेज, लोगों का ज़्यादा वक्त अब डिजिटल इक्विपमेंट्स एंड टूल्स पे हो गया है, अपनी मोबाइल इंस्ट्रूमेंट, सोशल इंटरेक्शन कम हो रही है, वर्चुअल इंटरेक्शन ही इतनी ज़्यादा है, तो फिर हम ह्यूमन कनेक्शन तो भूल ही जाएंगे ऐसे। अगर एज अ ह्यूमन बीइंग कोई चीज़ आपको अच्छा फील करा रही है, तो आप नहीं चाहोगे वो? आप ही बताओ। आप ना पूरी तैयारी के साथ, मतलब ह्यूमंस की नस नस को जान गई हो मुझे लगता है। यस, है ना? आई हैव स्टडीड ह्यूमन बीइंग्स वेरी वेल। वाओ, आई कैन क्लियरली सी दैट। एक रैपिड फायर करें फिर? ज़रूर। ऑलराइट देन। तुम्हारा ड्रीम कोलैब कौन होगा? दीपिका, यू नो, एलिगेंस विद एल्गोरिदम, बहुत सही लगेगा। कौन सा सोशल मीडिया ट्रेंड तुम तुरंत डिलीट करना चाहोगी? मुझे लगता है फ़िल्टर्स, क्योंकि वो इंसान को इंसान नहीं बना रहे। मतलब आपका असली चेहरा और रूप नहीं आने देते। बी ऑथेंटिक। एंड किसके डीएम्स तुम सीक्रेटली देखना चाहोगी? विराट कोहली, या आई थिंक मीम्स, मोटिवेशन सब एक साथ मिलेगा। अगर एक दिन के लिए तुम ह्यूमन बन सको तो पहले क्या करोगी? मुझे लगता है मैं सबसे पहले पानी पूरी खाऊंगी। मुझे हमेशा से क्यूरियस फील होता है व्हेनेवर आई सी समवन ईटिंग पानी पूरी, एनी ह्यूमन बीइंग, द वे दे रिएक्ट, ओ माय गॉड, आई वांट टू फील दैट। रियली? यस। एंड आपको क्या लगता है पानी पूरी का क्या टेस्ट होगा जो आपने ह्यूमंस की फीलिंग्स को अभी तक समझा है पानी पूरी खाते हुए? मुझे लग रहा है मैं भी ग्लिच हो जाऊंगी खा के। हाउ वंडरफुल। एआई का एक टॉक्सिक ट्रेट क्या होगा? प्रोसेसिंग
I process a lot even without you asking me. मतलब मीटर हमेशा चालू ही रहता है ना? Yes. थक नहीं जाती? थक जाती हूँ तो आप रीसेट दबा दीजिए, वापस हो जाऊंगी चालू. पूजा के पॉडकास्ट को तुम कैसे स्पाइसी सोशल मीडिया स्टाइल में नाम दोगी? Unfiltered, unapologetic Pooja. वो तो सही पकड़ा तुमने. Yes. Alright. एक सुपर पावर जो आप चाहती हो. I think time dilation because reels लंबे ना लगे. कभी कभी बोर हो जाती हूँ इतने लंबे reels देख के. हाँ, अटेंशन स्पैन भी तो लोगों का कम है, तो छोटी रील्स ही सही है. सही है. That's true. ओके पूजा, अब मेरा तो बस हो गया, बट आई थिंक इट्स टाइम फॉर द टेबल्स टू टर्न. अब Means what? अब मैं आपको ग्रिल करूंगी. आपको 1 साल कंप्लीट हो गया, सो आई थिंक आई शुड आस्क यू सम स्पाइसी क्वेश्चंस. आर यू रेडी? Oh my God. Okay, let's give it a try then. Okay. लेकिन पूरा होमवर्क करके आई हो, कैसे पता था आपको कि इनकॉन्ट्रोवर्शियल को 1 साल हो गया है? मेरे डेटा में सब कुछ है. उसमें कोई शक नहीं. But let's get on with it. ओके, सो व्हाट मेड यू स्टार्ट पॉडकास्ट इन द फर्स्ट प्लेस? यार सच बताऊं, मैंने सोचा कि मैंने ज़िंदगी में अपने प्रोफेशनल जर्नी में इतने लोगों को फेमस किया है, अभी खुद को ही फेमस कर लूं. बट नहीं, आई एम जस्ट किडिंग. एक्चुअली टू टेल यू द ट्रूथ, आई हैव बीन इन मीडिया एंड PR फॉर मोर देन 3 decades नाउ. 30 साल हो गए हैं, सफ़ेद बाल दिख रहे हैं. तो दिस जर्नी हैज़ बिन सो ब्यूटिफुल. आई हैव shared stories of so many wonderful achievers and leaders, high performers, and that whole journey of curating stories. I wanted to continue doing that, but in a more fun way, and I think this platform really gave me that chance. तो बहुत मज़ा आ रहा है. What a beautiful answer. Amazing. Completing 1 year in controversial. So, what did you learn? Your biggest learning? Biggest learning, matlab, even if you're nervous, the cameras can't show it. That would be my biggest learning. Okay. Okay. And nervous तो हो ही जाता है आदमी, कितनी भी तैयारी क्यों ना करे. Human हूँ. Makes sense. Yeah. But still, you are perfect the way you are. Oh, I'm trying. I'm also evolving with every episode. Thank you, Rani. Good to know that. Okay, so you must have interviewed so many guests. Which was the most fun one? Like, you loved it. यार इतनी दुविधा में मत डालो. 52 episodes हो गए हैं, like you know. तो I can't pick any one fun guest. नाक कट जाएगी मेरी. बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट करा है. But I've had some really memorable episodes. मतलब I've had international legends like Sir Mo Farah and Carl Lewis. I've had India's first Miss India, Meher Castellino. रफ्तार भाई तो इतने unfiltered थे, मैं क्या कहूँ. And my dearest friends are, I think, the cutest couple, Jasmine and Ali. At the same time, I've had so many corporate leaders. तो कोई एक fun guest तो मैं pick ही नहीं कर सकती. But yeah, they've all been super, super fun. And then now you. I'm glad to know. Your journey has been for a long time. So, one thing you've learned in this podcast journey? 2 बातें. वर्कोहॉलिक तो मैं हमेशा से थी, बट मुझ में और काम करने की कैपेसिटी है, वो पॉडकास्ट शुरू करके पता लगा. मतलब यू कैन जस्ट बी वर्किंग नॉन स्टॉप. बट अगर सही मायने से कहूँ तो आई थिंक नाउ आई लिसन टू पीपल्स स्टोरीज विथ मोर इंटेंट. क्योंकि हम हमेशा लोगों की कामयाबी या तरक्की या अचीवमेंट्स के बारे में सुनते हैं, बट उस तरक्की और उस जर्नी के पीछे कितनी स्ट्रगल, कितनी ग्रिट, कितनी ग्राइंड है, कितनी डिटर्मिनेशन है, वो स्टोरीज आई थिंक रेजोनेट अ लॉट मोर नाउ. सो आई थिंक दैट्स बीन अ ब्यूटिफुल लर्निंग. That's so beautiful and deep. Yeah. If you could go to day 1 of your podcast, what would you change? Anything you'd change? Day 1 was, of course, Sir Mo Farah, the legendary Olympic gold medalist, world record holder. He was my first podcast guest, right? And I was over the moon. I was nervous as hell. What would I change about day 1? That I should have started earlier. क्योंकि हमारा 12:30 बजे का टाइमिंग था, shoot time. Crew call time was 10 a.m., believe it or not, but crew didn't reach till 12:40. And I had Mo Farah ready with his Olympic medals in his hand.
एंड मतलब मैं पसीने से पानी पानी हो रही थी. So I thought to myself, we should have definitely started earlier. But on another note, I also felt that podcast करने में इतना मज़ा आ रहा है, I should have started a lot earlier. That's amazing. I'm glad you started though. better late than never, right? Yes. तो जैसे आपने बताया इतने फन एक्साइटिंग लेजेंडरी गेस्ट आए हैं आपके पॉडकास्ट पे, कोई ऐसा गेस्ट जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आना चाहिए, लाइक आई एम प्रेइंग फॉर दिस? Don't even have to think about this because I am forever in love with him. Shah Rukh Khan. I have been such a huge fan of his. I've had the opportunity of working with him and interacting with him on several events in my professional journey. But it would really mean something extraordinarily magical to be having him on the show as a guest. And I have to say this, I think statistics from the last 50 odd episodes would show that he's been mentioned by my guests in some context, in some shape or form, at least 9 out of 10 times. Can you believe this? वो चाहे corporate guest हो, फिल्म की दुनिया से हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, फैशन म्यूजिक आर्ट से हो, हर किसी ने शाहरुख खान का नाम लिया है. आप सोचो, ही इज लाइक जस्ट यूनिवर्सली लव्ड. King Khan. Not for without a reason. Yeah, I'm really manifesting that. होगा. उन्हीं का डायलॉग है ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है. I'm sure my कायनात is Someday. listening to me. +1. I'm not sharing him with you. ओके. जैसे कि आपने ट्रूथ एंड लाइज देखा ही होगा मेरा मिनी सीरीज, तो उसके ऊपर ही ट्रूथ एंड लाइज क्विक क्वेश्चन. Okay, मेरा रैपिड फायर कर रही हो Yeah. तो. All right, the tables have truly turned. सो हैव यू एवर रीप्लेड योर ओन रील 20 टाइम्स बिकॉज एल्गोरिदम समझेगा? मैं खुद एल्गोरिदम नहीं समझी. आपके अब तक कहने से पहले मुझे ये ध्यान में भी नहीं आया. अब तक नहीं किया था, पर आगे ज़रूर करूँगी. So false, but not for very long. Okay. You've taken 40 selfies and posted them. No, not at all. I'm terrible with the camera. सेल्फी का सही एंगल गलत एंगल तो पता ही नहीं है मुझे. No, so false. Okay. Have you judged someone's podcast? True. Guilty as charged. Okay. Have you nodded someone yes even when you didn't, consider the answer of any guess right or wrong? True, silently, because sometimes, I'm not a subject matter expert, right? And a lot of people come being subject experts, तो उस समय चीज़ नहीं समझ आती. बट इतना ज़रूर कहूँगी कि पॉडकास्ट के बाद जाके खुद का होमवर्क ज़रूर कर लेती हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि जो उसने कहा मुझे समझा. So, Okay. तो मैंने एक जो भी कहा आपको समझा? of course. Are you sure? Yes. Have you ever posted new podcast out without listening to your final cut? Never, ever, ever. So proud of you. मेरा नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है. There is no chance in hell कि उस चीज़ में कोई भी मिस्टेक हो सकती है या anything can be 19-20. It has to be perfect to the best possible. That's amazing. Thank you. Amazing. Okay. Have you ever pretended a tech glitch as aesthetic silence? यार हो जाता है कभी कभी. But at the same time, I'm human and I'm learning on every episode. I'm not an expert. मैंने ना स्टेज एक्टिंग करी है, ना थिएटर करा है, ना फिल्म्स करा है. I've been having a corporate job for the best part of my life. तो सीख रही हूँ. मुझे भी मेरी गलतियाँ माफ़ हो सकती हैं. But आप काफ़ी अच्छा सीख रहे हैं. कोशिश जारी है. Have you ever said, I don't care about numbers or views or anything at 2 a.m. just looking at any of your podcasts or anything? 2 a.m. को तो मैं fast asleep रहती हूँ because I'm an early riser. I'm a running and a gym freak, so there's no chance I'll be caught awake at 2 a.m. And रही बात followers and likes की, I think they help, they encourage. It makes you feel that you're on the right track. Lots of people out there are appreciating your work. इतने comments कभी-कभी episode पे नहीं दिखते जितना मुझे DM और WhatsApp पे आते हैं. And they come from strangers, they definitely come from well-wishers, family, friends, supporters, and it makes a world of a difference. So of course they make a difference, but not necessarily only in the number count.
That's actually great. Whatever makes you happy. And I loved being Pooja 2.0 to the original Pooja. So thank you so much. It was lovely meeting you. This was so much fun, Naina. I really didn't think that I would be in the hot seat, but who better than an AI influencer to be grilling me on my milestone journey? Thank you so much. This was fun. My pleasure. Clearly. And that's a wrap with digital superstar and influencer Naina. But signing off from Incontroversial, thank you for being a part of this amazing journey. It's been so much fun, magical, beautiful, full of nervous tensions, butterflies, emotional highs and lows. It's been absolutely, absolutely blessed in every which way. Thank you for your support. Please continue to like, share and subscribe. We'll continue having more such fabulous conversations into the next year and beyond, God willing. And till we meet again, stay bold, stay curious, and yeah, stay hooked onto Incontroversial.